everyone. Welcome back to another inspiring episode of The Career Compass, जिसके अंदर हम सिर्फ प्रोफेशनल से मिलते नहीं हैं, उनसे उनके प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए रियल लाइफ चैलेंजेस, रियल स्टोरीज, रियल स्किल सेट की बात करते हैं. और आज के प्रोफेशनल हमारे साथ जो मौजूद है यहाँ पे, शी इज़ अ वेरी रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर अभिलाषा विलियम्स फ्रॉम सीएमसी हॉस्पिटल. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी पिंपल की वजह से कॉन्फिडेंस लो हुआ हो, या कभी रील्स में किसी को देख के ये लगा हो मेरी स्किन परफेक्ट क्यों नहीं है, सो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी ऑफ योर ग्रेट इंटरेस्ट बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव chat with ma'am on all these issues. We will also be discussing about the career opportunities, career hurdles that are there of being a dermatologist. Ma'am, welcome to Career Compass. Thank you so much for inviting me, ma'am. Ma'am, as you are a very renowned doctor and you are a professor at CMC Hospital Ludhiana under dermatology department, तो अगर हम ये सब कुछ हटा दें तो who little Abhilasha was once? क्या वो शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थी या medicine came to her by chance? So I was born in Ludhiana. So my parents, my father used to work in CMC, and he was surrounded by doctors all the time. So growing up, I have seen doctors everywhere. So I decided that I'm going to be a doctor, maybe in first or second class. Oh my God, that's such It a... was clear what I wanted to do. Okay, lovely, ma'am. Ma'am, how did you start your journey of starting as MBBS डॉक्टर, या MBBS करते हुए मतलब चलो आपने एक छोटी अभिलाषा ने तो सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट व्हेन यू वर एक्चुअली परसुइंग MBBS तो कभी लगा कि हाय ये मैंने क्या कर लिया, बहुत ही लंबा टाइम एंड ऑल? So I was very focused from the beginning that I want to be a doctor. So this is very important because when you are trying to plan your career, you should have a vision. You should have a long-term vision. What do you want to do, and why do you want to do that? Because I was clear, so I knew that for me it is nothing else. It is medicine, and I have to do science, and I have to go further. So my parents realized it actually, and they were very supportive, and they took me through those the tuitions, the school, and they used to counsel me, and they used to take me to the doctors. Some of them who were inspiring, and they used to motivate me. They used to talk to me, and That Dr. Bano, it is of, yes, a huge respect. In fact, yes, this is one of the most respected professions. yes. So that we have. they used to take me to the right people, the ones whom they knew that they would be able to guide me properly. Mhm. So I guess by the time I reached 10th and 11th, I just loved biology. I knew I have to be a doctor, nothing else. And at time there was no NEET. So the PMT दिया होगा, हाँ, PMT का exam दिया होगा. PMT दिया था. But then now the things have changed, and now the NEET has come. And to pursue MBBS, you first have to pass NEET. And after that, you come into MBBS. And yes, there are days when I feel, oh, why did I take that? But those days are very few, and those phases are very transient. Most of it is happy, and I never regret that I've taken this decision. Lovely, very nice. So, ma'am, why dermatology? Like, because if a layman would be watching our podcast, he or she will not understand about it. They will say, generally, we call it skin care doctor. तो आपको dermatology ने क्यों attract करा, and why did you become a dermatologist only? So when I was growing up, I'm a Christian. So and we have these stories from the Bible where Jesus used to heal the lepers, and he used to touch the lepers and heal them. In the olden times, the norm was that the leper used to be taken out of the society. So it was like a stigma, but I used to like that fact that he went and touched the leper, and the leper was healed. So that was one of the reasons I got very inspired, because when you look at dermatology, the dermatology degree is dermatology, venereology, and leprology. Okay, So ma'am. it encompasses the three of them. So the one of the components is leprosy, and I'm very passionate about. Ma'am, it will be great if you can explain to a layman in a very simple term about these terms. So dermatology is about the study of skin diseases and treatment of skin diseases. Venereology is study of sexually transmitted diseases and management, treatment, counseling.
And leprology is study and treatment management of a leprosy patient. So these three are, so when you get a degree in MD dermatology, so it is MD dermatology, venereology and leprology. Okay. So ma'am, there are a lot of myths that are related to skin, है ना? कोई कह देता है ये लगा लो एक्ने ठीक हो जाएगा, ये लगा लो इससे बेटर हो जाएगी स्किन. So let us burst some of the myths. Are you ready, ma'am? Right. आपको just मुझे ये बताना है whether it is a fact or a fiction. I'll give you some set of statements. So very first is toothpaste से pimples ठीक हो जाते हैं. Toothpaste से pimples ठीक हो जाते हैं. But fact or a fiction? So it is something like it's a quick fix. Okay. It is generally done in hostels amongst girls, but I would recommend that finally you have to come to a dermatologist to take it. So it's a fact. It does help, but I would not say that that is the treatment of choice. Okay. Fair skin is healthier one. No. Fiction. Fiction. Sunscreen सिर्फ girls के लिए होती है, boys तो नहीं लगाते. Everybody should apply it. Chocolate causes acne. Yes. It's a fact. Home remedies are always safe. No. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, let us directly ask a question which many of the students would want to ask from you. You know, board exams, college, placements. So, बहुत ज़्यादा poor eating habits उनकी होती हैं. So, क्या इससे skin पे उनकी impact आता है? See, skin is the largest organ of the body. So whatever happens inside your body is reflected on the skin. So suppose when you are sad, it shows on your face, right? So similarly, if there's something deficient inside of your body, it will either show on your hair, on your skin, on your nails, or the general countenance will change. You know, your skin will not glow. It will be very sad looking skin, just as a normal way of explaining it. So it does matter. Okay, तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Eat healthy. Okay, first thing first, they should eat healthy. Stress free, if possible. If the stress is there, try to have some ways of de-stressing yourself. Exercise, walks, it will help. Take lots of seasonal fruits. They will give you a lot of antioxidant boosts. Then generally before the exam is when the stress comes, and that is when you have the eruption of pimples. So the fact is that you have to change your lifestyle, meaning you have to work hard towards your exam from the start. If you do everything at the last moment, फिर pressure build up and it will show on your skin as well. Even the hair fall is related to stress. My next question was about that only. A lot of teenagers, they feel they face the issue related to their skin, not just skin, hair also, because that's also part. So hair fall starts, pimples start erupting on their face, and they don't want to meet anybody. In fact, उनको मतलब पिक्चर्स लेने में भी होता है कि नहीं मेरी पिक्चर क्लिक मत करो. तो ये क्यों है? पहले तो उनको क्यों होता है बच्चों को टीनेज में आके, और अगर होता है तो इसका क्या वो जनरली क्या चेंजेस करें अपनी लाइफस्टाइल में जिससे? सो ड्यूरिंग द टीनेज, ये जो टीनेज इयर्स में क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है. बिफोर इट स्टेबलाइजेस हमें क्या होता है कि कभी कभी हॉर्मोन्स जो ब्लड में वो फ्लक्चुएट करते हैं, तो उससे क्या होता है सडन पिंपल एरप्शंस होते हैं, बाल में प्रॉब्लम होता है. अगर हम कोई भी तरह का स्ट्रेस ले लो, सपोज किसी को फीवर हो गया, डेंगू मलेरिया हो गया, किसी को हीमोग्लोबिन कम है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है, उनमें क्या होता है कि वो जब ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, इट्स इंसल्ट टू द बॉडी, बॉडी को स्ट्रेस हो जाता है. तो वो कैसे शो करता है कि मुझे प्रॉब्लम है, बताएगा कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे 3 महीने के बाद. जनरली गिव इट अ टाइम ऑफ अबाउट 3 months. तो 3 महीने के अंदर अंदर क्या लगता है कि बाल झड़ रहा है, और जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ये तो वो बताते हैं कि चलो 2-3 महीने पहले हमें ये स्ट्रेस हुआ था, ऐसा हुआ था. सो इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अ स्ट्रेस. तो वो हमें पहले सबसे पहले तो अवॉइड, मतलब स्ट्रेस से बहुत बड़ा रीजन है. ऑल ऑफ यू द वंस हु आर वाचिंग द पॉडकास्ट, प्लीज अंडरस्टैंड स्ट्रेस का बाल झड़ने से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. तो अपनी स्ट्रेस को कंट्रोल रखो और उससे आपके हेयर फॉल भी कम हो सकता है एज पर डॉक्टर. डॉक्टर, एक और क्वेश्चन मेरा है कि आपके पास क्या लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं कि पिंपल्स हो गए हैं
कोई मेडिसिन दे दो। ज्यादा रहता है लोगों को कि स्किन वाले के पास तभी जाना है जब कि कोई pimples पिंपल होते हो हैं, गया। पिंपल्स जो टीनेज लड़कियां होती हैं वो ज्यादा आती हैं पिंपल्स के लिए, बट अदरवाइज हेयर फॉल इज वेरी कॉमन, नेल डिसऑर्डर्स आर वेरी कॉमन। और तो थोड़े हेल्दी नेल कैसे होते हैं, क्या उनकी निशानी होती है? दे आर पिंक हम्म, एंड दे डोंट, मतलब वो जल्दी टूटते नहीं है, बिटर नहीं होते हैं ना, ब्रिटल नहीं होते हैं, या एंड गुड दे वेरी नेल शाइनी, बेड्स अच्छे होते हैं ना उनके। ठीक है। तो कब आप एक थोड़ा सा कुछ हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि कब उनको डर्मैट के पास आना चाहिए? बिकॉज मेनी अ टाइम्स यू नो, आपने जैसे बताया, इट इज एन इंसल्ट टू द बॉडी व्हेन वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, और हमें समझ भी नहीं आता, वी कीप ऑन गोइंग टू अदर डॉक्टर्स। तो डर्मैट के पास कब आना चाहिए? व्हाट इज दी वे टू फिगर आउट कि ये बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट? स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम है, स्किन में कोई इरप्शन हो गया, बाल झड़ रहा है, पिंपल्स हो रहे हैं, आपको मुंह में कोई अल्सर्स हो रहे हैं, नेल्स में प्रॉब्लम है, पेशाब के रास्ते में कोई प्रॉब्लम है, ऑल दीज आर रीजंस टू कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड नॉट अच्छा, यूरिनरी इशू भी इट इज रिलेटेड यस टू? फॉर द, मतलब यूरिन के पास की जो जगह होती है ना, द इंटीमेट एरियाज, दैट आल्सो बी ट्रीटेड। ओके, ऑलराइट। एंड मैम, जनरली हेल्दी स्किन के लिए आप कोई टिप्स दे पाए सब ऑडियंस को जो देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट? अगेन आई से द ब्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। तो अगर आपका आपका इनर सेल्फ अगर हेल्दी है तो आपका स्किन में ग्लो आएगा, सो वो आपको मेंटेन करना है, प्लस आपको हेल्दी खाना खाना है। ये जो आजकल के फास्ट फूड्स होते हैं, ये आप खा सकते हैं, आई एम नॉट सेइंग आप नहीं खाओ, लेकिन ट्राई टू डू इट वंस अ वीक और हैव अ चीट डे वे यू कैन डू इट, बट जनरली वंस इन अ वीक कैन बी अ चीट डे। it can be a cheat day, but other days you have to eat दाल चावल, जो मामा बोलती हैं, सब्जी खाना है, दाल भी होनी चाहिए, थोड़ा सैलेड होना चाहिए ना, थोड़े नट्स भी होने चाहिए, और खाने के बाद थोड़ा फ्रूट होना चाहिए, दही होना चाहिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट। All these things are part and parcel of good and healthy skin. All ऑल्सो right. यू मतलब वी एडवाइस कि आपको सनस्क्रीन शुरू से लगाना चाहिए, मीनिंग as early as some people can start as early as 8 years 9 years, Okay. the you should 8 years start से using- पहले नहीं, कर सकते हैं because जनरली आजकल बेबी सनस्क्रीन्स भी आते हैं 6 ना months के बच्चों बाद के आप लिए। यूज कर सकते हैं, Okay, so sunscreen is must for everybody. because it prolongs, it delays the photo aging, because Okay. the sun, the aging which comes gets delayed, so the skin is very healthy. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा हो गई है ना, जिसकी वजह Because से of the ozone layer and because of the pollution and all that, it is important to apply sunscreen all the time, and you should not use sunscreen कि आज लगाया कल नहीं लगाया, फिर एक दिन जब याद आया तब लगा लिया। एंड सारे एक्सपोज्ड ऑर्गन्स पे हमें लगाना चाहिए। Yeah, especially the face and the hands, जब जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन डी लेना है, तो आप क्या करो, आप फेस पे लगा लो, विटामिन डी एक्सपोजर लेना है तो आप अपने हैंड्स एंड लेग्स को एक्सपोज करके ले लो, बट फेस को आप प्रिवेंट करो, बिकॉज फेस इज व्हाट इज लाइक अ मिरर, एंड अगर आपके फेस में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको थोड़ा सेल्फ इमेज में प्रॉब्लम आता है, सो इट इज बेस्ट टू अप्लाई अ A सनस्क्रीन। lot of people come for the self image issue when it comes to skin. These days I've seen a trend, self image issues are, किस तरह के आप कुछ केसेस डिस्कस कर सकते हैं? जैसे पिंपल्स होते हैं, सो दे डोंट फील गुड अबाउट देयर स्किन, सो आई व्हाट आई एडवाइज इज, अगर आपको पिंपल्स शुरू हो रहा है, डोंट वेट फॉर इट टू बिकम ज्यादा, पहले Because कहा जाता है ना puberty में basically you know वो होते हैं, बट आप आके उसका ट्रीटमेंट करा लो, क्योंकि अगर आपने डिले कर दिया ट्रीटमेंट तो वो स्कारिंग हो जाएगी, अब वो स्कारिंग हो जाएगी, एक समय आएगा आपके पिंपल्स चले जाएंगे, लेकिन वो स्कार रहेगा, फिर आपको लगेगा कि मेरा फेस स्कारड है, फिर आप स्कार के लिए ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो बेस्ट इज प्रिवेंशन, आप पहले ही अपने पिंपल्स का इलाज करवा लो। for girls मैम, जब उनकी menstruation start होती है तब भी a lot of pimples तब वो you know, hormonal issues होते हैं ना, before it settles down the body is trying to, so is that normal? Is it's that normal, but if you have During- more pimples तो आपको ट्रीटमेंट करवाना। मैम, if I talk about the cosmetics products जो available है, ये भी कितनी बारी आपके पास जरूर केस आते होंगे, तो इसके बारे में प्लीज आपका क्या कहना है? See, cosmetic products जो होते हैं ना, they have a variety of them. So choose those products जो आपको, आपके लिए है, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम है, और आप उसके लिए स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट के पास जाओ। ऐसा नहीं कि क्योंकि मार्केट में आया है, क्योंकि ये ट्रेंडी है, या ये सीरम अभी नया लॉन्च हुआ है, दैट डजंट मीन कि आपको उसकी जरूरत है, बट बेसिक आपको रेजिमेंट मेंटेन करना चाहिए, मॉइस्चराइजर लगाओ, सनस्क्रीन लगा लो, ऑल दैट, बट ये जो क्योंकि उसके पास है, उसने लगाया वो सीरम, उसने ले लिया तो मैं भी लगाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
नहीं बट मैम विच प्रोडक्ट्स टू ट्रस्ट विच नॉट टू, कैसे ट्रस्ट करें हम? क्या ऐसा प्रोडक्ट के पीछे हम रीड कर सकते हैं कुछ ऐसा, या कुछ केमिकल्स अगर आप हमें बता पाए कि ये वाला तो बिल्कुल ना खरीदे, बिकॉज एज अ बायर यू गो एंड यू हार्डली रीड द इंग्रेडिएंट्स, सो वेयर वी कैन गेट तो टू नो जैसे दिस फॉर इज एग्जांपल अगर आपको सनस्क्रीन चूज करना है, सो चूज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन व्हिच कवर्स बोथ यूवीए एंड यूवीबी, उसमें वो लिखा आएगा। एंड एसपीएफ जनरली 30 to 50 हम इंडियन स्किन के लिए मानते हैं, तो जनरली 30 और 50 के बीच में आप यूज कर सकते हैं एसपीएफ। उसमें अगर लिखा हो नॉन कॉमेडोजेनिक, अगर आपको पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो आप वो देखो कि उससे पिंपल्स तो नहीं होते, वो लिखा होगा उसमें, तो आप वो यूज कर सकते हैं। समटाइम्स इफ यू हैव एलर्जी और आपको लगता है आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप वो प्रोडक्ट्स यूज करो जिसमें लिखा होता है कि दिस इज फॉर सेंसिटिव स्किन, ओके, कैन यूज दोस प्रोडक्ट्स। मैम व्हाट इज द डिफरेंस, ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ब्रांड्स अपने आप को आयुर्वेदिक कहते हैं, है ना, मेकअप कॉस्मेटोलॉजी इसमें कि मेकअप करना है, इट्स आयुर्वेदिक, इट इज सेफ, इट इज हार्मलेस, तो हाउ ट्रू इट इज एट द बैक So एंड? I have not studied about this Ayurvedic, तो मैं ऐसे आपको कमेंट नहीं कर सकती कि कौन सा मेडिसिन ठीक है कौन सा नहीं है। आई कैन टॉक अबाउट एलोपैथिक जिसमें लिखा है, प्लस आपको वो प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए जिसके पीछे लिखा नहीं कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो ऑलवेज गो फॉर द वन जिसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या आप अप्लाई कर रहे हो। ओके मैम, थोड़ा सा हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। सपोज एनीबडी हु इज इन ग्रेड 11 एंड दैट चाइल्ड वांट्स टू बी लाइक यू, so what is the roadmap would you like to So tell the child is in 11th, right? 11? So उसने already choose कर हुआ है, science choose कर या physics, chemistry, medical, yeah. medical लिया हुआ है। And she wants to be a doctor. Hmm. And एक तो hard work. Without hard work, nothing in this world works, right? So ma'am is going to talk about skill set required to be a doctor basically. So जब मैं स्कूल में थी तो I was in I don't remember 10th or 11th. So my senior really did very well in her exams. So then the principal of the school, she asked her to have an interview on the intercom that time, and that girl told us I used to study for 6 hours in a day. So and then she told me about few other things. She used to make her own notes, and so what she used to do was take the notes from different books, compile and make her own notes, and at the end she used to revise अपने notes से वो revise करती थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगा और एकदम क्लैरिटी मिली और फिर मैंने उसको अपनाया। So I also started saying कि मैं पढ़ूंगी, फिक्स्ड आवर्स हैं और मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि इतना तो मैंने करना ही करना है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि अच्छा 4 घंटे पढ़ लिया कोई बात नहीं, 2 घंटा छोड़ दो। You have to be very diligent, you have to be very consistent. So if you're doing something, you have to do it again and again ताकि आपके दिमाग में वो जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ जाए। प्लस आपको जैसे हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स आर वेरी हेल्पफुल, बट आजकल मैं देख रही हूँ कि इतना ज्यादा मटेरियल इज अवेलेबल ऑनलाइन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि क्या चीज आपके लिए ठीक है। यू हैव टू फिल्टर इट आउट। इफ यू कांट फिल्टर इट आउट, आप अपने टीचर से बात करो, जो आपके ट्यूशन मास्टर्स हैं उनसे बात करो, अपने सीनियर से बात करके वो मटेरियल को आप हटाओ, सो दैट यू स्टिक टू द व्हाट इज इम्पोर्टेंट। Because during the exam, ma'am, it is like समुद्र की तरह कंटेंट पड़ा हुआ है और आपको पढ़ना सिर्फ एक शिप के जितना है ना, तो आपको एक मेंटर चूज करना है। यू हैव मेंटर कुड बी अ टीचर, mentor could be a friend, mentor could be a senior, mentor could even be a relative who has done a similar achieved the success in that and follow their advice. And जैसे वो वहां तक पहुंचे, उनसे पूछिए, उनसे बात करो कि उनके क्या challenges थे, उन्हें कैसे वो overcome करा। Those things really help. Ma'am, this was the reason we started Career Compass here, right? Because a lot of students who come to us, no, they asked कौन सा बेस्ट है, अगर मुझे डॉक्टर भी बनना है कोई, मतलब तो कौन सा वाला मैम अच्छा है। तो इसमें मुझे यही था कि let us have the professionals like you who are already successful in the career, and whosoever wants to choose you as a mentor, maybe online also they can connect with you। आजकल इंटरनेट का जमाना है ना, हमारा इंटरनेट यूनिवर्सिटी जो हमारी चलती है, सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी, वहां पे भी काफी कुछ मिल जाता है, बट किस तरह का कंटेंट आप चूज कर रहे हो टू मूव फॉरवर्ड, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैम, एक एडवाइस जो आप बच्चों को देना चाहें, इनफैक्ट फॉर गर्ल्स, दे गेट वेरी मच लूर्ड by seeing their mothers doing makeup,
है ना, कुछ फ्रेंड्स अगर उनकी कर रही हैं तो उनको भी होता है मेकअप करा लें हम भी। तो किस एज से मेकअप करना स्किन के लिए ठीक है? कब तक हमारी बिल्कुल ही बेबी स्किन जिसको बोला जाता है रहती है, और कब हमारी स्किन ओके टाइप्स हो जाती है कि हम हाँ मेकअप कभी कभी यूज कर सकते हैं? सो देखो, जब हम टीनेज की बात करें तो उस समय जो हमारा जो हार्मोनल सिक्रीशन है वो थोड़ा ज्यादा होता है, और थोड़ा स्किन स्टेबलाइज उस समय नहीं हुई होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेकअप नहीं कर सकते, अगर आपको करना है आप करो, लेकिन आपको अच्छी तरह से उसको रिमूव करना है एट नाइट, बिकॉज समटाइम्स अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करते तो क्या होता है, वो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो ब्लॉक जाते हैं, एंड देन यू डेवलप पिंपल्स आफ्टर अ फ्यू डेज, दैट इज वन। सेकंड, आप मेकअप इसलिए करना चाहते हो क्योंकि किसी और नहीं कर रहा, सो दैट शुड नॉट बी द रीजन आप मेकअप कर रहे हो। You should do makeup because you like you feel like doing it. you know, you develop your confidence, and you want to just feel good for some time. That is all right. हम्म। कौन सी मतलब आप क्या कहना चाहोगे जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, बिकॉज गर्ल गर्ल चिल्ड्रन, राइट? तो कोई वेडिंग्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, तो वो मेकअप करके भेजना होता है उनको बच्चों को, तो वो कब कौन सी एज के बाद दे के स्टार्ट डूइंग? जब आप मेकअप करो, मेकअप ऐसा इट डिपेंड्स कि आपका कैसा मेकअप करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अपनी बेटी बेटी को थोड़ा ग्लॉस लगा लिया, there's no harm in that. सनस्क्रीन तो डेफिनेटली, अगर आप सनस्क्रीन इनको लगाने को बोल रहे हो, डेफिनेटली कभी कभी जब मम्मी को देखे वो फाउंडेशन लगाते हैं, सो दे कैन अप्लाई फॉर 1 or 2 hours, बट जस्ट मेक श्योर कि वो रात में उसको निकाल दें। इसको ऐसे मना नहीं करना, पर उनको समझाना है कि मेकअप ज्यादा करने से क्या नुकसान है, सो दैट दे अंडरस्टैंड कि इस प्रोडक्ट को हम यूज करें तो उससे क्या नुकसान है। अगर हम बोलेंगे नहीं करना नहीं करना, और हम उनको ये नहीं बताएंगे क्यों नहीं करना, तो वो एक ज्यादा रीजन बनेगा, है ना? एंड मैम, हाउ अबाउट नेल पेंट्स? बिकॉज आई डोंट लाइक अप्लाइंग इट, मैं बिल्कुल नहीं लगाती, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गो फॉर नेल आर्ट एंड जेलिंग एंड ऑल। इसके बारे में व्हाट वुड यू So लाइक these टू are से? trending things. There's nothing wrong with that. But again, अगर आप इसको continuously लगा के रखते हैं, आपके nails brittle हो जाते हैं, thinned out हो जाते हैं. Sometimes if there's a yellow coloring discoloration upon the nails, so basically वो ये सब बताता है कि the nail is taking a toll because of the chemicals that is being applied on the nails. और मैम, अगर नेल पेंट हम लगाएं भी तो कितनी देर तक लगा रहे हैं इस वक्त? सी अगर आप देखो, आप जो ब्रांड्स अवेलेबल है, ठीक है, नाउ द कॉस्ट ऑफ द नील पेंट, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट नेमिंग एनीथिंग, it could be ranging from 600 500 to even 75 rupee का पेंट आता है। बिल्कुल। नाउ कहीं ना कहीं तो डिफरेंस है ना मैम, क्वालिटी में। तो जब आप ऐसा नेल पेंट लगाओगे, कई कई बार नेल पेंट लगाने के बाद 1 हफ्ते के बाद जब आप उसको रिमूव करते हो, सो द नेल इज वेरी येलो, सो दैट मीन्स ऊपर वाला जो स्किन, जो नेल प्लेट का जो सेल्स है, they are totally ruined. You have to be very careful. Just give some time, let your nail breathe, and apply some nice oil. Almond oil you can use, and just massage it well. And you can use some nail vitamins. You can, or even a healthy diet is good enough. Okay. But whatever you do, you should not overdo it. थोड़ा बहुत करो, जिस नेल आर्ट आपने करा, आप कहीं जा रहे हैं, शादी में गए, आपने कर लिया, पर जब आप स्कूल जा रहे हैं उससे पहले आप निकाल रिमूव कर लो। And ma'am, what about pedicures, manicures? ये भी लोग कराते हैं regular. So do you really feel it is the need of our skin to do it, or it is just in our mind only? कि ये सब See, जरूरी है? all this is to पेडिक्योर मैनिक्योर से हम क्या करते हैं, अपने नेल्स को साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने आप को मसाज कर रहे हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन इज इंक्रीजिंग। जो कभी कभी जो नेल डेड बिकॉज ऑफ द वेयर एंड टेयर, हमारा जो वॉक होता है इतना ज्यादा, तो गंदगी जम जाती है, तो वो क्या करते हैं कि प्रोफेशनली दे विल ट्राई टू रिमूव, बट जनरली व्हाट हैपेंस इज कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिवली मैनेज करते हैं, तो कभी कभी ट्रॉमा हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि अच्छा करने के बजाय बुरा होता है, इन द सेंस कि वो बाहर का जो इन्फेक्शन है वो अंदर जाता है। जनरली नहीं होता, बट कईयों को जैसे नेल बेड इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पस डिस्चार्ज हो जाता है, बस आते हैं। तो फिर हम उनको ये बोलते हैं कि थोड़ा जो आप जिससे करवा रहे हो, या तो उनको बोलो कि आपके इंस्ट्रूमेंट साफ करें, एंड या मेक श्योर कि इतना एग्रेसिव ना हो पेडिक्योर मैनिक्योर। Being a girl, ma'am, I have a question related to what we do bleaches and facials on our face. उसकी frequency क्या होनी चाहिए? क्या normal है, क्या नहीं है? See, Let's normalize it for everybody. when you are a teenage, or when you are in your early 20s, maybe till 30s, आपकी skin में enough estrogen है and all the other hormone boost है, so that you don't need all these actually.
as you grow older, what happens is the level of these hormones which are skin friendly, they start decreasing. At that time, you can start introducing the massage once in a while. So massage से क्या होता है कि वो जो आपके जो lymph है circulation that improves. So because of that, the blood circulation improves, the lymph improves. So जो भी गंदगी है या कोई भी जो भी कंटामिनेंट्स है जो आपके स्किन के अंदर जाके सेल्स के अंदर जाके रुक रहे हैं एज अ सेलुलाइट, बिकॉज ऑफ दैट मसाज, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सर्कुलेशन, वो निकलेंगे और वो ब्लड स्ट्रीम में जाके दे विल बी excreted from the body. So in that way, it is definitely important to do facials, but over a period of time. So like As- I've done. And what about bleaches, ma'am? Just coloration of the. See, as a dermatologist, I've seen a lot of cases of allergy to bleaches. And in fact, I skin get would burnt not also. No? recommend bleach. And generally हमारे जो मैंने देखा हमारे कल्चर में क्या होता है, ब्लीच इसलिए करते हैं क्योंकि वो गोरा दिखना चाहते हैं. ये एक बहुत दैट इज नॉट, मतलब गोरा दिखना इज नॉट, मतलब हमें उनको बताना पड़ेगा कि just because आप fair हैं doesn't mean you are pretty, or just because you're dark doesn't mean that you're not good looking. तो जनरली हमें वो जो माइंडसेट है उसको हटा. And ma'am, what do you have to say about the dark circles? बहुत से बच्चों को हो रहे हैं. Is use of mobile phone also causing dark circles? That blue light, ये एक होता है, प्लस स्ट्रेस से बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं. समटाइम्स देयर कंडीशन जो इनहेरेंट होती है, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, ड्राई स्किन की वजह से होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कहीं वो एलर्जिक टेंडेंसीज होती है, उनमें डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं. सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट कि रीजन क्या है डार्क सर्कल्स का, उसको हमें फाइंड आउट करके उसका ट्रीटमेंट करना है. देन ओनली इट इज अफेक्ट. समटाइम्स क्या होता है, फेमिलियल होता है, जैसे मम्मी को है तो बच्चे को हो गया. अब उस बच्चे को मतलब इट्स अ जेनेटिक थिंग, सो उसमें इतना ज्यादा ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता कंपेयर टू अगर हमें पता है डेफिशिएंसी की वजह से डार्क सर्कल्स हुए, तो डेफिनेटली अगर आप वो डेफिशिएंसी को हटाओगे डार्क सर्कल्स से. Ma'am, artificial intelligence is changing everything, and healthcare is no exception here also. So, what do you have to say about AI in skincare? And as a dermatologist, how you are using AI in your profession? हम कैसे यूज करते हैं, हम जैसे मेनी साइट्स जहाँ पे वो डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑफ डिफरेंट पेशेंट्स वो अरेंज करते हैं, और एक कोई जो हमें सस्पिशन है कोई कंडीशन, हम उसका अगर आप फोटोज में डालोगे तो वो मैच करता है द अदर फोटोग्राफ्स. सो इट इज इजी टू डायग्नोस सम कंडीशंस. जैसे अगर कोई बाहर से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इज कमिंग फ्रॉम अ फार अवे प्लेस जहाँ पे हमारा स्किन फ्लोरा, हमारा स्किन टेक्सचर इज डिफरेंट फ्रॉम जो बाहर से जो आ रहे हैं, उन लोगों में अगर हम उनके स्किन टाइप के हम इमेजेस डालें एंड उसमें वो AI यूज करते हैं, सो वी आर बेटर एबल टू मैच द डायग्नोसिस. Okay, you've already started using It is coming in the market and there are many apps available. It is very good for people who are, for example, in CMC, we have small outreach hospitals. So वहाँ पे experts नहीं होते, but they are junior doctors who go and work. So they use these apps. And with that, they're able to find out the diagnosis, and वो app के through उनको management भी मिल जाता है कि तो it's easy to diagnose and treat a patient. And especially skin में क्या होता है, वो it's on the face. है ना, मीनिंग दिखता है सबको, तो अगर आप वो फोटो लेके डालो एकदम से पता चलता है. और मैम जो लोग AI यूनिवर्सिटी से पढ़ के आपके पास आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, we studied from net and we have applied it. So what do you have to say to those patients? So see, if they have already done a treatment, they have come to me because वो इलाज उनका हुआ नहीं, तभी वो मेरे पास आए. So then I have to tell them, see, if you have already done this, I will go to the next step. Say, see, phase 1 है, आपने कुछ लगाया, उससे फर्क नहीं पड़ा, so I'll give you a next level of treatment. So sometimes when they read, वो गलत नहीं होता है, ठीक पढ़ के आते हैं, बट समटाइम्स वो क्या होता है, वो बहुत एक्सट्रीम में चले जाते हैं कि उनको बोला है कि इतना ही लगाना है, तो उन्होंने सोचा कि हम जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट ले लेते हैं और उन्होंने ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, एक लेडी को हमने बोला कि आपने हफ्ते में 1 बार या 2-3 बार आपने ये क्रीम लगा के सन एक्सपोजर देना है. उसको वो लिकोडर्मा था, उसने सोचा कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तो उसने क्या करा कि हर रोज लगाया और हर रोज स्किन एक्सपोज कर दिया सन को. अल्सर्स हो गए एंड शी हैड अ रिएक्शन. इट वाज अ बैड स्किन आफ्टर दैट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, लिसन टू द डॉक्टर.
है ना? तो whatever medication you are taking, just follow Follow the what advice. instructions given by the doctors. And ma'am, it is known also and seen also that people who meditate, who do some exercises, yoga, their skin glows differently. Yes. So what is your take on it? See, if you are joyful, it shows on your face. If you are happy from inside, it shows on your face. So जैसे अगर आप देखो कोई एक बंदा बहुत डिप्रेस्ड है, तो उसको आपको कैसे पता चल जाएगा कि वो डिप्रेस्ड है? आप उसकी फेस को देखोगे, आपको समझ आ जाएगा. सो द फेस इटसेल्फ शोज, Is the index of mind. राइट? सो हमें हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ब्यूटी इज एक्सटर्नल, यू नो, इट इज द ब्यूटी इज इंटरनल. Everything, if your mind and your soul is in alignment with your purpose and what you are, why you have come on this earth, and what is your purpose, are you feeling fulfilling that purpose? तो जो आपका जो soul and mind heart connect है, वो aligned होएगा, and that will show on your face. That is one way of putting it. Because a lot of people who meditate, they say no need to do facial bleach, nothing's on the face. So that automatically glows Yes. like that. Ma'am, is expensive skincare better? No, it should suit you. कभी कभी जो नेचुरल जो सिंपल अवेलेबल ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम बोले कि वही प्रोडक्ट्स विल हैव डिफरेंट रेंज, एक 500 का होगा, एक 250 का होगा, डजंट मीन कि बिकॉज इट्स 500 वो ज्यादा बेटर है. Okay. It many depends products- upon skin to skin. Ma'am, how much water should somebody drink? At least 7 to 8 glasses per day. Okay. That is a norm. Everybody should follow it. Stress causes hair fall, Yes. right? What we can do apart, like if somebody is trying to control the stress level, but what medication they can start for the hair So fall? there are a lot of medications which I can't be वो depends on the patient to patient. But hair oiling करो आप, no, Hair oiling कितनी देर में करनी चाहिए? once a week is okay. Once Just apply a- for half an hour, 1 hour. Which oil? Coconut oil. I mean, it Coconut. depends upon you. Whatever suits you, you can use Okay. that. And what is the biggest mistake Indian skincare people are doing while doing the skincare? Sunscreen, they don't apply sunscreen. That's the biggest one. Okay. So, ma'am, a very important and interesting part of our podcast that we always enjoy, that is the rapid fire. Are you ready? Whatever comes to your mind, you just answer that. Okay. Tea or coffee? Books or Netflix? Books. Hospital rounds or teaching? Teaching. Skincare routine, simple or complicated? एंड वो भी आप क्विकली बता दें क्या रूटीन होनी चाहिए. सनस्क्रीन तो आपने बता दिया, और सीटीएम सीटीएम के बारे में अगर आप थोड़ा गाइड करना चाहें. फॉर अ टीनेजर, उसमें पहले आप एनीबडी हूसोएवर वुड बी वाचिंग, आप एज के अकॉर्डिंग बता सकते हैं. आप जनरली हम बोलते हैं फेस वॉश यूज करना चाहिए फॉर द फेस. बेसिकली आपका जो पीएच, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करो उसमें आपको देखना है कि पीएच शुड बी अराउंड 5.5, बिकॉज़ दैट इज द पीएच ऑफ द स्किन. सो इफ यू यूज अ प्रोडक्ट व्हिच इज न्यूट्रल हो जाता है ना वो, आई थिंक द सेम अगर है तो आपको वो जो स्किन में आपको वो ड्राइनेस नहीं होगा. जैसे सपोज, आई डोंट वांट टू नेम एनी ब्रांड्स, बट जो बहुत पॉपुलर ब्रांड्स होता है, when you apply the soap and when after the shower when you come out your skin feels very very dry. That means that the pH of that soap was very very high because it has taken out all the moisture from your skin. it So should just- be yes. 5.5 Yes. whenever you're buying The the product. skin pH is 5.5, so try to buy products which are around that 5.5, 5. बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा कम ना हो. मैम, नाइट केयर, yes or no? Yes. Few tips for night care. So for the face, अगर आपने makeup use करा है, so you have to remove it very well. You can use a makeup remover or a cleansing milk. Then make sure that it is removed thoroughly. Then apply according to your skin type. You can apply a moisturizer and sleep. And try to use a moisturizer which is non-comedogenic if you are prone for pimples. And in the morning when you get up again, you have to wash your face and then apply a moisturizer. And then Apply the sunscreen. Sunscreen should always be the last. Okay. And ma'am, it is said like a lot of people who does makeup also, they also use sunscreen before doing the makeup. They use the sunscreen before doing the makeup.
So sometimes the makeup has inherent, they will write that, for example, a primer with SPF of 50, which is very good. So the primer has the SPF, so they have used it. It's very good enough. Then you don't need to apply sunscreen on top. And it is said that even if somebody is not going out, then also sunscreen is important. Because the UVA comes in through the windows. You need to have that. Okay. Ma'am, favorite skincare ingredient for you? Aloe vera gel, One food everyone should eat. fruits. One habit everyone should quit. ये मुझे अभी तक नहीं आया समझ. Chalo. One word for today's youth. Be happy, have less stress, enjoy your life, and thank God for it. One advice to every girl. You are very, very beautiful. God has made you in His own image, and He's made you with His own hands. And you are really, really blessed to be in this world and in the family that you are in. One advice for boys. You are also very unique, and you are the future head of the family. So your every decision that you take, your career choices, your family choices should be based around that. मैम एक थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगी. सपोज अ टीनेजर इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, उसके पिंपल्स हैं और एक्ने जैसे भी आप बोलो, और कॉन्फिडेंस बहुत लो हुआ पड़ा है अंदर से कि मुझे तो फोटोग्राफ भी नहीं करानी है, मुझे नहीं कहीं जाना, मुझे वेडिंग में नहीं जाना, फैमिली फंक्शन नहीं. तो ये पेरेंट्स को भी डिप्रेस करता है ये चीज को लेके. तो उस बच्चे को, उस टीनेजर को आप क्या कहना चाहेंगे, बीट अ गर्ल और बॉय? So सबसे पहले अगर तो कोई प्रॉब्लम है फेस पर, ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट करना चाहिए. एंड यू शुड गेट ट्रीटमेंट करना चाहिए पहले, मतलब लेट नहीं होना चाहिए, ताकि आगे जो सीक्वल हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ना हो. लेकिन अगर आपको लगता है फेस पे कुछ नहीं हो, फिर भी बच्चे को लग रहा है कि आई एम नॉट गुड लुकिंग और समथिंग, तो डेफिनेटली द पेरेंट्स पहले काउंसलिंग कर सकते हैं. उसके बाद हम कोई किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास आप जा सकते हैं, बिकॉज सेल्फ इमेज विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. If you're confident, then it'll show in your studies, and it is a chain. It helps you to increase and have a good success in life. मैम, आपको जब भी पेशेंट आते हैं तो काउंसिल करना पड़ता है उनको बिफोर यू गिव मेडिकेशन? It depends on the problem the patient has. तो उस हिसाब से, जैसे बच्चों टीनेजर्स होते हैं, उनको तो डेफिनेटली काउंसिल करना पड़ता है. Thank you so much, ma'am. We really loved your presence. Thank you for coming to Career Compass and sharing all your knowledge with us. Thank you. Thank you so much. So you were watching a podcast with Dr. Abhilasha Williams, who is the professor at CMC Hospital, Ludhiana. मैम ने बहुत ही easily और बहुत ही beautiful way में आपको healthy skin care के बारे में tips दिए हैं, और students को ये भी बताया है, in case they want to choose dermatology as their career pathway, how to go about that. Stay tuned for upcoming podcast. We are coming up with a lot of another podcast also with the professionals who are doing great in their life. Thank you so much, everybody.